ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر پر جانے لگے ہیں، آپ اس کے بارے میں جانتے نہ بھی ہوں تو آپ نے اس کے نام کا ٹریکٹر پاکستان اور انڈیا میں ضرور دیکھا ہوگا۔ اسمارٹ فون کی مشہور ترین ایپ وائبر بھی وہیں ڈیولپ کی گئی۔ بیلاروس، جسے مقامی زبان میں ریسپبلکا بیلاروس کہا جاتا ہے، یعنی ریپبلک آف بیلاروس۔ اصطلاح بیلاروس کا مطلب ہے سفید روس۔ یہ مشرقی یورپ کا ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کی سرحدیں کسی سمندر سے نہیں لگتی۔ ملک کی کل سرحد 3642 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں سے 13012 کلومیٹر مشرقی سرحد رشیا کے ساتھ لگتی ہے، 1111 کلومیٹر جنوبی سرحد یوکرائن کے ساتھ، 418 کلومیٹر مغربی سرحد پولینڈ سے، جبکہ شمالی سرحد 646 کلومیٹر لتوینیا اور 161 کلومیٹر لاتویا سے ملتی ہے۔ ملک کی آفیشیل زبان رشین ہے جو 72.2% بولی جاتی ہے۔ بیلاروسین بھی آفیشیل زبان ہے جو 23.4% بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 3.1% پولش اور یوکرینین، جبکہ 3.3% باقی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بیلاروس کا کل رقبہ 2,07,595 اسکوائر کلومیٹر، جس میں سے 4,700 اسکوائر کلومیٹر پر پانی موجود ہے۔ مجموعی رقبہ کے لحاظ سے یہ دنیا کا 27واں بڑا ملک ہے۔ بیلاروس سائز میں امریکی ریاست کینساس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ ملک کا دارالحکومت منسک ہے اور ملک کا سب سے عظیم ترین شہر بھی منسک ہے۔ یہ معاشی طور پر ملک کا سب سے ترقی یافتہ شہر ہے۔ صنعتی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے تعلیمی مرکز کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ شہر کا ٹرانسپورٹ سسٹم ترقی یافتہ ہے، جو بسز، ٹرالی کارز اور میٹرو سسٹم پر مشتمل ہے۔ 54 پلوں پر مشتمل دریائے سوسلاک دارالحکومت کے بیچوں بیچ گزرتا ہے۔ منسک سٹی کو 18 مرتبہ جلایا اور تباہ کیا گیا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران بڑے پیمانے پر بمباری ہوئی، جو شہر کے طرز تعمیر کی بڑی تباہی کا باعث بنی۔ تباہی کے باوجود دوبارہ تعمیر ہو جانے کی صلاحیت کی وجہ سے ہی اسے ہیرو سٹی کا خطاب دیا گیا۔ اس کے ہر شہر میں ولادیمیر لینن کے نام پر ایک گلی کا نام رکھا جاتا ہے۔ ملک میں تقریباً 1 لاکھ سے 35,000 سال پرانی انسانی بستیوں کے آثار ملے ہیں۔ اس کے ساتھ لاٹویا اور لتوینیا 2 یورپی یونین کے رکن ممالک ہیں، اس لیے یہاں سے بہت سے لوگ ان ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیلاروس کی معیشت بنیادی طور پر زراعت اور مینوفیکچرنگ کی صنعت پر ڈیپینڈنٹ کرتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین میں جہاں دوسرے شعبے تباہ ہوئے، وہیں زراعت کا نظام بھی تباہ ہوا، تو ملک میں نئے ایگریکلچر آلات کی ضرورت پیش آئی۔ 1946 میں بیلاروس ٹریکٹر کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں اپنا پاورفل انجن اور بناوٹ کی وجہ سے کسانوں میں اپنا منفرد مقام بنانے لگا۔ بیلاروسین مائیں اپنے بچوں کو اجنبیوں سے چھپا دیتی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی ان پر نظر بد ڈال سکتا ہے۔ یہ ملک سستی روسی بجلی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ بیلاروس میں پراپرٹی رائٹس بہت کم اور کرپشن بہت زیادہ ہے۔ یورپین بائسن یعنی جنگلی بیلوں کا گڑھ ہے۔ بائسن یورپ کی سرزمین پر بچ جانے والا بیل کی شکل کا وزنی ترین جانور ہے۔ مادہ بائسن 1000 کلو گرام یعنی 2200 پاؤنڈز کا ہوتا ہے۔ کا سب سے بڑا سیاسی اور معاشی شراکت دار روس ہے۔ ملک اپنی 48% بیرونی تجارت روس سے کرتا ہے، جبکہ روس کی کل بیرونی تجارت میں بیلاروس صرف 6% حصہ ڈالتا ہے۔ آئس ہاکی ملک کا مقبول ترین کھیل ہے، جبکہ دیگر مشہور کھیلوں میں ایتھلیٹکس، فٹ بال، جمناسٹک، اسکائنگ، بائتھلون، ٹینس، ریسلنگ، والی بال، ہینڈ بال، سوئمنگ، چیز اور چیکرز شامل ہیں۔ بیلاروس میں قرون وسطیٰ میں بننے والے 1 درجن کے قریب قلعے موجود ہیں۔ میر نامی گاؤں میں واقع قلعہ دنیا کے خوبصورت قلعوں میں سے ایک ہے۔ بیلاروسین ہمیشہ دشمن ہمسایوں کے حملوں کا شکار رہے اور کئی مرتبہ ان کا ملک لوٹا گیا۔
बेलारूस की नेशनल लाइब्रेरी 72 मीटर बुलंद 22 मंजिला इस इमारत में मुख्तलिफ मौज़ूआत की 8 लाख के करीब किताबें मौजूद हैं। 31 बैंक हैं जिनमें से 30 हुकूमत के हैं और एक सिर्फ प्राइवेट बैंक है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वसी निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 2 एयरलाइन और 30 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन बिलाविया है। मुल्क में 65 एयरपोर्ट हैं जिनमें से 33 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क में सालाना 15,90,035 अफराद बाई एयर सफ़र करते हैं। मुल्क में 86,392 किलोमीटर सड़कें और 5,528 किलोमीटर लंबा रेलवे का निज़ाम भी है। मुल्क में 11,000 झीलें, 28,000 के करीब नदी नाले और दरिया हैं। मुल्क के तकरीबन 40 से 45% लोगों की उम्र 25 से 54 साल है। बेलारूस अपने रिच सकाफती विरसे, आर्ट गैलरीज, अजायब घरों और थिएटर के हवाले से मशहूर है। इसके तारीखी मकामात कई यादगारों, किलों और महलों पर मुश्तमिल हैं। मुल्क सियाहों को बहुत आउटडोर मकामात, पार्क और खुली जगह फराहम करता है। आपको इस मुल्क में 5 मशहूर नेशनल पार्क्स मिलेंगे। इनमें एक बिलोवास्का पुश्चा नेशनल पार्क है जो अंडोरा मुल्क से 3 गुना बड़ा और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बेलारूस 25 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ, मगर यहाँ के लोग अपना यौम आज़ादी हर साल 3 जुलाई को मनाते हैं, इसलिए कि 3 जुलाई 1944 को मिन्स्क शहर जर्मन फौजियों से आज़ाद हुआ। मोहतरम नाजरीन, बेलारूस के फ्लैग में ऊपर की तरफ एक सुर्ख चौड़ी हॉरिजॉन्टल पट्टी है। इसके नीचे एक सब्ज पट्टी है जिसकी चौड़ाई सुर्ख पट्टी से आधी है। इन पट्टियों के पीछे एक सफ़ेद रंग की वर्टिकल पट्टी है। इस पर सुर्ख रंग में बेलारूस के कौमी निशानात जेवरात की तरह सजाए गए। सुर्ख रंग माजी की जद्दोजहद की नुमाइंदगी करता है, जबकि सब्ज रंग उम्मीद और मुल्क के जंगलात की नुमाइंदगी करता है। मुल्क में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें 83.7% बेलारूसियन, 8.3% रशियन, 3.1% पोलिश, 1.7% यूक्रेनियन और 2.4% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं, जबकि 0.8% लोगों की नस्ल का मालूम नहीं। बेलारूस का सालाना GDP $54.44 बिलियन है और सालाना GDP ग्रोथ रेट 2.4% है और परचेजिंग पावर $189.4 बिलियन है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर $24.5 बिलियन है और सालाना फीकस आमदनी 18,900 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी 26,22,375 रुपयों और इंडियन 13,48,987 रुपयों के बराबर है, जो दुनिया में 94 नंबर पर आता है। मुल्क के कुदरती वसाइल में लकड़ी, पेट, डिपॉजिट, कम मिकदार में तेल और कुदरती गैस, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मार्ल, चॉक, रेत, ग्रेवल और क्ले शामिल हैं। ज़रूरी मसनूआत में अनाज, आलू, सब्जियां, चुकंदर, फ्लैक्स, गोश्त और दूध शामिल हैं, जबकि सनती मसनूआत में मेटल कटिंग, मशीन टूल्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक, अर्थ मूवर्स, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, रेफ्रिजरेटर और दीगर घरेलू मशीनरी शामिल है। मुल्क $28.65 बिलियन की अशिया एक्सपोर्ट करता है, जबकि $31.58 बिलियन की अशिया इंपोर्ट करता है। मुल्क में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। मुल्क का सरकारी मज़हब ईसाईयत है। मुल्क में 48.3% लोग ईसाईयत के फ़िरके ऑर्थोडॉक्स, जबकि 7.1% लोग कैथोलिक फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं और 41.1% लोगों का कोई मज़हब नहीं। बेलारूसियन लड़कियां 25 साल की उम्र में शादियां करती हैं और शादी की तकरीबात पुरवकार और सादा तरीन होती हैं। शादी के बंधन से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को परखते हैं, फिर एक तवील तल्लुक़ के बाद शादी का फैसला करते हैं। शादी की एक तकरीब चर्च में होती है, जहां वेडिंग के लिए दूल्हा और दुल्हन के मेहमान पहुंचते हैं। दुल्हन अमूमन सफ़ेद गाउन पहनती है। दुल्हन अपने वालिद के साथ चर्च जाती है,
जहां पादरी दोनों को एग्रीमेंट पर साइन करवाता है और इन्हें बाआवाज़े बुलंद कबूल करवाता है। फिर जिंदगी के नए सफर की कामयाबी के लिए दुआ करवाता है। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। दूसरी तकरीब किसी वेडिंग हॉल, रेस्टोरेंट या किसी पुरफजा मकाम पर मुनक्कद होती है, जहां ड्रिंक, डांस पार्टी और म्यूजिक का दौर चलता है और दुल्हा दुल्हन परिंदे आज़ाद करते हैं। तकरीब के दौरान दुल्हा अपनी बेल्ट अपने कंवारे दोस्तों और दुल्हन अपना बूके अपनी कंवारी सहेलियों की तरफ फेंकती है। जो पकड़ता है वो अपनी शादी का लड्डू खाने की तैयारी कर लेता है। फिर दुल्हा दुल्हन केक काटते हैं और खाना पेश किया जाता है। मुल्क का सबसे बुलंद तरीन मकाम जॉर्जिंस्का या हारा है, जो सतह समुंदर से 346 मीटर बुलंद है। मुल्क में मोतदल आबो हवा पाई जाती है। सर्दियां ठंडी तरीन और गर्मियां हल्की ठंडी और नमदार होती हैं। बेलारूस की कुल आबादी 95,27,543 अफराद है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 94 नंबर पर आता है। मुल्क में पैदाइश से ज़्यादा अमवात होती हैं। मुल्क में सिर्फ 46 अफराद पर स्क्वायर किलोमीटर आबाद हैं, यानी ज़मीन ज़्यादा और लोग कम हैं। इस मुल्क में रहने वाले लोगों की औसत उम्र 73.2 साल है। बेलारूस की करेंसी बेलारूसियन रूबेल है। ये मुल्क अपने जीडीपी का 5.7% अपने लोगों की सेहत पर खर्च करता है, जो दुनिया में 113वें नंबर पर आता है। मुल्क में रहने वाले 1000 लोगों के लिए 4 डॉक्टर और 11 बेड मौजूद हैं। मुल्क में 15 साल से ज़्यादा उम्र के 99.7% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। ये मुल्क अपने जीडीपी का 5% तालीम पर खर्च करता है। बेलारूस की तारीख की बात करें तो बेलारूस में 5000 साल कबल मसीह में भी तहजीब याफ्ता कबाइल आबाद थे। 987 ईस्वी में इस खित्ते पर प्रिंसिपलिटी पोलिस कायम हुई। इस खित्ते पर कायम होने वाली ये पहली रियासत डच लोगों ने कायम की। 1236 ईस्वी को यहाँ के लोगों ने मंगोलों से बचने के लिए सल्तनत ग्रैंड डूची ऑफ लिथुआनिया की अतात कबूल की। 1 जनवरी 1569 ईस्वी को पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ कायम हुई, जो 1795 में 3 हिस्सों में तकसीम हुई। तो ये इलाके रूसी सल्तनत के हिस्से में आए। जर्मन कब्जे के बाद 25 मार्च 1918 को बेलारूस ने रूसी सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान कर दिया। 1922 ईस्वी को बेलारूस ने द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के बानी मुल्क की हैसियत इख्तियार की। 1989 सोवियत यूनियन ख़त्म हुई तो इस मुल्क को आज़ादी की बजाय सिर्फ इख्तियारात दिए गए और आखिरकार 1991 में ये मुल्क आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। वैसे तो पूरे मुल्क में लोग आबाद हैं, लेकिन शहरी इलाकों की तरफ आबादी का रुझान ज़्यादा है। 78.6% लोग शहरों में आबाद हैं, 21.4% लोग देहात में आबाद हैं। अगर दिलचस्प मालूमात की बात की जाए तो बेलारूस में कंवारी लड़कियां एक दायरे में बैठ जाती हैं और हर लड़की अपने सामने मकई के कुछ दानों का ढेर बनाती है। इसके बाद एक मुर्ग को दायरे में लाया जाता है और जिस लड़की के सामने से वो मकई चुगता है, इसके बारे में कहा जाता है इस साल वो दुल्हन बन जाएगी। मगरबी बेलारूस में वाक़या सोतियाज एक जंगली झील है जो गोल शक्ल की है और इसका किसी और झील से कोई लिंक नहीं और ना ही कोई दरिया या बहार उसे सैराब करती है। ये झील टेट्राडेनियम जावेज नामी पौधे के नाम से वजूद में आई है। ये पानी इंतहाई शफाफ और मीठा है। पानी वाला ये पौधा दुनिया में सिर्फ इस झील के पास और इंडोनेशिया में पाया जाता है। शफाफ मीठे पानी के इस वसी ज़खायर की वजह से इस मुल्क को द ब्लू आइलैंड कहा जाता है और यहाँ की कंवारी लड़कियाँ शादी में टेबल के कॉर्नर पर नहीं बैठती। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है, यानी गाड़ियाँ सिर्फ दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होता है और इसकी इंटरनेट डोमेन नेम .by है। मुल्क में फ़ोन यूज़र की तादाद 1,09,63,224 है, जो आबादी से भी ज़्यादा है। इंटरनेट यूज़र की तादाद 68,05,786 है, यानी मुल्क की 71.1% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल जानती है और मुल्क का कॉलिंग कोड +375 है। बेलारूस की ज़्यादातर ट्रैफिक पुलिस रिश्वत नहीं लेती।
बेलारूस यूरोप का वो मुल्क है जहां अभी तक सजाए मौत दी जाती है। बेलारूस में कोई यूनिवर्सिटी नहीं जो बेलारूसियन जबान में तालीम दे। बाकी यूरोपीय मुल्कों के मुकाबले में बेलारूस के लोग हर साल सबसे ज्यादा खजाना तलाश करते हैं। मुल्क में ज्यादातर यादगारें लीनिन के नाम से मंसूब की जाती हैं। आज दुनिया की 34 जियोडेटिक आर्क्स में से 8 बेलारूस में है। ये नेटवर्क 265 पॉइंट या स्टोन क्यूब्स पर मुश्तमिल है जो 2020 मीटर लंबे हैं। जमीन का साइज और शेप मालूम करने के लिए इन आर्क्स को बनाने में 40 साल लगे। बच जाने वाले इन आर्क्स को 2005 में यूनेस्को वर्सा करार दिया गया। मोहतरम नाजरीन, मुल्क में तमाम फास्ट फूड चेन हैं। मुल्क में आलू, सूअर और बीफ हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, इसलिए खाने से पहले कन्फर्म कर लें और हलाल फूड के लिए एशियन रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता है। ब्रिच सी बेलारूसियन का पसंदीदा तरीन मशरूब है जो पैकिंग और बड़े गिलासों में बेचा जाता है। बेलारूस यूरोप का मुल्क है मगर यूरोजोन का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसकी अपनी वीज़ा पॉलिसी है। मोस्टली यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और अरब कंट्री के रिहायशी वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं, लेकिन शो मनी करना ज़रूरी है। ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर शहरियत नहीं देता। हाँ, अगर आप वहाँ की लड़की या लड़के से शादी कर लें तो शहरियत मिल जाती है। दोहरी शहरियत नहीं देते। 7 साल मुसलसल रहने पर आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका 18 साल का होना ज़रूरी है। यहाँ की लड़कियाँ हर काम करती हैं, अपने बच्चों और फैमिली को टाइम देती हैं और मुस्तकबिल के हवाले से मर्द से ज़्यादा कोशिश करती हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।